Okay, so this is chapter number 3, physics, force and pressure, and this you see this scan from Concise book, that is Kaya's book. I also have your book, Anushri, over here, uh, force and pressure. But what I feel is Kaya's book is giving all the information which your book is giving. Your book has got a good exercise, like the questions are very nice in Anushri's book, but the explanation and the kind of diagrams and figures and the pictures which are given in between are better in this book. So what we'll do is because it's exactly the same chapter, there are no topics which are different. Okay, unlike the first chapter in both the books was a little bit different, but here the chapter is exactly alike. So there is no choice between this book or that book. Both the books are same for this chapter. That's why I'm doing it from this book, since I told you it has got nice content in it. So we'll try to understand the concept much more better way using this book. And after we finish that one topic, I'm going to give exercise from Anushri's book to both of you. Okay, so you both of you have to do the exercise from Anushri's book that I will provide. Okay, so let's begin with the chapter. The first part of the chapter is about force. Okay, now we know that force is responsible for many things in our day to day life. Force is simply known as a push or a pull. Okay, so force is responsible for what all physical changes or what all things in our day to day life. I'll just list few of the phenomena for which force is necessary or force is responsible. So सबसे पहले तो नोट्स लेना. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल. Force is a push or a pull. What can force do? What can a force do? Number one, it can move a body at rest. Force can move a body at rest. Okay. Number two, it can stop a moving body. एक मूविंग बॉडी को रोक सकता है फोर्स. नंबर थ्री, इट कैन चेंज द स्पीड of a moving body. See, all those effects of forces which I am listing right now can be illustrated by simple examples. One simple example of these effects of forces is football. It can move a body at rest. अगर एक फुटबॉल रेस्ट पे है, तुम उसको फोर्स अप्लाई करके किक करते हो तो it will start moving. If the football is already moving, coming towards you, you can apply force on it with the help of your leg and you can stop it. If the football is already moving in front of you, you can stop it. You can apply force on it and you can move it with even greater speed. You can change the speed of a moving body with a force. You can also slow down a moving football with the help of force. Actually, it slows down itself by the force of friction. So force is also responsible for decreasing the speed of a moving body. It can change the direction of a moving body. Not only speed but also the direction. If the football is coming from one direction, you can apply force and send it to some other direction. Not only football, many things. Okay, football is just one example which I am giving
to make you understand it easily. Number 5, force can change the shape or size or both of a body. If you apply force on a body, you can change the shape or size or both shape and size of a body. Suppose you are applying force on a rubber band, you are stretching it. What you are doing? By applying force, you can change the shape and size of the rubber band, right? So that's the force which is responsible for doing that. Yeah, I think these 5 effects of forces are noteworthy. These all effects of forces you must know. This is what force can do. Now we know that force can produce a linear motion in a body. Suppose there is a box lying on the ground. Okay, if I apply force on it, what will happen? It will move in a straight line. It will go ahead. If I apply force on it, it will move in the straight line. What if, let's say, what if there is a door? This is the handle of the door. What if you apply force on it? What will happen with this door? Can anyone answer? Suppose it's written push. If you apply force on it, what will happen? Sir, the door will open. How will it open? एक ऑप्शन देता हूँ मैं, एक ऑप्शन देता हूँ तुमको, ठीक है? So this is the frame of the door. This is the ground. This is the frame of the door, ठीक है? You push it, the door just walks out, or door just gets pushed out of the frame. Does it happen that way? क्या डोर पूरा बाहर चला जाता है स्ट्रेट लाइन में? No, sir. What happens? It opens in an angle. Actually, you call it that. Yes, Anushri? Sir, it changes the position. How does it change the position? So the door opens like this. You see, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया. So don't you think the door has turned? ठीक है? So this is the 6th characteristic of a force. Force can produce turning effect on bodies which are fixed but free to move about an axis. Please note down this whole thing. फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. किस में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा फोर्स? इन दोज बॉडीज विच आर फिक्स्ड but they are free to move about an axis. Door is such an example. For example, door. डोर फिक्स्ड है अपनी जगह पे. क्या डोर अपनी जगह छोड़ के जाता है कहीं पे? कहीं नहीं. डोर उधर ही रहता है. ओनली थिंग, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन अ डोर, इट टर्न्स. So how does it turn? By applying force on it. That means by applying force you can produce turning effect in bodies which are fixed but free to move about an axis. Door is one such example.
but there are many other examples in your day-to-day lives where the bodies are fixed in their position but free to turn or free to rotate about an axis. You apply force on such bodies and turn them, you rotate them about that axis. So who is rotating it? Your applied force. So force can also produce turning effect. Force can also rotate bodies. Okay, so this is one example I'm emphasizing on. Why? Because this is what you have to study in this chapter. बाकी सारे ठीक है एग्जाम्पल्स, ठीक है, इट कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, ये सब सिंपल था, लेकिन ये टर्निंग इफेक्ट वाला यूनिक एग्जाम्पल है. यस अनुश्री, एनी डाउट? No, sir. ओके ग्रेट. यस केया. Sir, what about windows? Like they are stuck like up and like down. Sliding They windows? just move it back and forth. Sliding windows, you mean sliding? Yeah. Yeah, so sliding windows are also fixed but free to move, but they do not turn. They can just slide. So the force applied is producing linear motion, linear. Okay, so there are two types of motion, linear and circular. I am more interested in circular motions, where you apply force and the bodies turn about an axis without actually moving away or towards a particular point. They remain in their position but they turn about one axis. So door is one such example. I'm trying to give you more examples like this. Okay. Okay, next information about force is its unit. How do we measure force? Please note it down. Measurement of force. Force is measured in its SI unit called Newton, named after the scientist. The SI unit for force is Newton. The SI unit for force is Newton. So force is measured in newtons. Okay, suppose you are applying force on a body, so the force which you are applying, it will be measured in newtons. One more point to be noted, the word which you use every day in your day-to-day life, weight. Weight is also a kind of force, and weight is also measured in newtons. कोई तुम्हें अगर पूछता है कि what is your weight and you say my weight is so and so kg, kg में नहीं होता है weight. Weight is a kind of force, ठीक है, and weight is also measured in newtons. Okay, weight is also measured in newtons, and there is a method of measuring weight. Weight को measure करने का एक तरीका है. Weight which is gravitational force, weight which is gravitational force on a body is measured using a spring balance. वेट को कैसे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस है. तुमने स्प्रिंग बैलेंस देखा है? जो रद्दी वाले के पास होता है, उसके ऊपर कोई भी वेट उसके हुक में अटैच करके दे मेजर इट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस.
So the spring balance shows you the weight which is measured in newtons, and that is the gravitational force. So weight is also kind of force. ठीक है, and force is measured in the SI unit which is known as Newton, not kilogram. Don't measure weight in kilogram. In kilogram you can only measure mass. किलोग्राम में सिर्फ मास मेजर होता है, वेट मेजर नहीं होता है, याद रखना. ओके, नोटेड दिस. This is a very important figure. This is also there in Anushri's book, I think. This figure shows what is or how much is 1 Newton force. 1 Newton is approximately 100 grams. तुम्हारे हाथ में अगर 100 ग्राम का वेट रखा है तो तुम्हें जो 100 ग्राम का जो मास है तुम्हारे हाथ में, द काइंड ऑफ फोर्स इट इज एक्सर्टिंग इन योर हैंड, it is equal to 1 Newton approximately. 100 grams is approximately 1 Newton and 1 kg is approximately 10 Newton. I will just write over here. 100 grams is approximately 1 Newton and 1 kg is approximately 10 Newton. यहाँ पे मैं लिखता हूँ approximately ताकि तुम्हें ये अंदाज़ा आए. इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. बट अभी के लिए यू शुड नो दिस मच दैट 1 न्यूटन इज अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स. ठीक है, ये जो ग्राम्स है ना, ग्राम्स, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं ग्राम फोर्स, GF, और ये kg को कभी कभी लिखते हैं KGF, किलोग्राम फोर्स. दीज आर ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वेट. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल units of weight. Gravitational units of weight, gram force and kilogram force. 100 grams 100 grams is 1 Newton and 1 kg is 10 Newton. So when I ask you what is gram force and kilogram force, they are gravitational units of weight. And when I ask you what is grams and kilogram, they are the units of mass. Units of mass. And what is Newton? Newton is the unit of force. ठीक है, be very clear about it. Okay, so now you know how to measure force. Now we are talking about turning effect of force. मैंने पहले ही बताया, टर्निंग इफेक्ट किस में प्रोड्यूस होती है, कौन सी बॉडी में? द बॉडी विच इज फिक्स्ड बट फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस. ठीक है, टर्निंग इफेक्ट उस बॉडी में प्रोड्यूस होती है विच इज पिवोटेड. दिस इज अ न्यू वर्ड आई एम गिविंग यू. रिमेंबर दिस वर्ड. दिस वर्ड is pivoted. So please note this down. Turning effect is produced in pivoted bodies. Turning effect is produced in pivoted bodies. ये जो pivoted word है, इसका मतलब क्या है? Pivoted means fixed but free to move about an axis. Fixed but free to move about an axis. That is pivoted. Pivoted, PIVOTED. अब मुझे बताओ, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था पिवोटेड बॉडी का, which is
फिक्स्ड बट फ्री टू मूव. फर्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे मेरा फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कर रहा था, वो कौन सा एग्जाम्पल था? Sir, door. एग्जैक्टली, द डोर. डोर इज पिवोटेड. अब मेरा क्वेश्चन है, डोर कहाँ पे पिवोटेड है? वेयर इज द डोर पिवोटेड? कैन एनीवन टेल मी? डोर कहाँ पे पिवोटेड है? डोर इज pivoted at fill in the blanks. come on, थोड़ा दिमाग लगाओ. डोर फिक्स्ड है अपनी जगह पे. कहाँ पे? उसको क्या बोलते हैं? वो जो पार्ट है जो कॉर्नर में होता है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया था. इफ यू सी, दिस इज वेयर आई फिक्स्ड इट. ये साइड में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? डोर के साइड में Rotation. no. वो पार्ट को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर की शॉप में जाओगे. Axis of नहीं axis बाबा, of एक्सिस तो इमेजिनरी होती है जिसके जो वो पार्ट के थ्रू पास करती है. अबाउट दैट एक्सिस द डोर टर्न्स. तुम अगर हार्डवेयर की शॉप में जाओगे, बोलोगे मेरे को ये चाहिए, वो डोर जिसके ऊपर सेट होता है ना, वो चाहिए. क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? यू विल एम्बेरस योर सेल्फ. वो दुकान वाला हंसेगा तुम पे, अरे तुमको पता नहीं इतना. उसको क्या बोलते हैं? हिंजेस. क्या बोलते हैं? हिंजेस. पता है ना, सुना है हिंजेस, सुना है सबने. yes sir. यू नो हाउ हिंजेस लुक्स लाइक. ठीक है, इफ यू Yes. डोंट नो, आई विल गूगल इट फॉर यू. hinges. कैन यू सी hinges? डिफरेंट काइंड्स ऑफ hinges. देखें ये hinges तुमने? ठीक है, इसी के ऊपर तुम्हारा डोर फिक्स्ड है. फिक्स्ड इस तरीके से है दैट इट इज फिक्स्ड बट फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू द hinges. वो जो एक्सेस पास हो रही है ना hinges से, वो इमेजिनरी एक्सेस है. वैसी कोई एक्सेस होती नहीं है, सिर्फ हिंज उसको पकड़ के रखता है अपनी जगह पे. बट हिंज अलाउज इट टू रोटेट अबाउट इट सेल्फ. सो डोर इज पिवोटेड एट hinges. मैं तुम्हें और एग्जांपल देना चाहता हूं पिवोटेड बॉडीज के. मोर पिवोटेड बॉडीज एग्जाम्पल. ठीक है, पहला तो हो गया डोर. नंबर 2 विल बी व्हील. डू यू एग्री विद मी दैट व्हील इज पिवोटेड? कोई भी व्हील उसके सेंटर पे पास होने वाली एक्सिस पे पिवोटेड होता है ना. इट इज फिक्स्ड एट द सेंटर बट फ्री टू रोटेट अबाउट दैट सेंटर. डू यू एग्री? अगर व्हील बाहर, वहां से बाहर निकल गया तो व्हीकल खराब हो जाएगा. व्हीकल चलेगा कैसे? व्हील अपने आप तो स्लाइड नहीं होता राइट और लेफ्ट, वो तो सिर्फ रोटेट होता है अपनी जगह पे, जिसकी वजह से व्हीकल आगे बढ़ता है, साइकिल आगे बढ़ती है, बाइक आगे बढ़ती है. तो व्हील इज ऑल्सो पिवोटेड. व्हील इज अ पिवोटेड बॉडी. तुम्हें कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तुम्हारे घर पे, या तुमने कभी अपने अराउंड देखा है कोई ऐसी पिवोटेड बॉडीज है जिसको तुम पुश करते हो टर्न होती है? वो व्हील हो गया, डोर हो गया, और कुछ है? यस. Sir, fan, या, एक्सेलेंट, but we excellent. don't push it. It is pushed by electrical energy, so there is some force. Yeah, by Yeah. electric. So electrical energy produces mechanical energy, mechanical energy produces force, and the force turns the fan. Fan is pivoted. Excellent. Anything else which you see around you is pivoted. तुम्हें पता है जब किसी कॉन्विक्ट को जेल में डालते हैं ना, तो जेल में, प्रिजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉकअप, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिजन. जब प्रिजन में किसी को डालते हैं तो उसको वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है. दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं उसको, RI. रिगरस इम्प्रिजनमेंट में प्रिजन के अंदर तुम्हें काम करना पड़ता है, कुछ भी काम दे सकते हैं. और एक बहुत फेमस काम है चक्की पीसना. जेल में चक्की पीसना सुना है क्या?
नहीं सुना? जेल में लोग चक्की पीसते हैं, कैदी। तो ये क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। हैंड फ्लोर ग्राइंडर आता है, हैंड फ्लोर ग्राइंडर। लेट मी शो यू द फिगर। हैंड फ्लोर ग्राइंडर जो ऐसा दिखता है, कभी देखा है ऐसा? ये देखा है कभी भी लाइफ में? Yes. ये गांव में भी होता है, Yes. ये गांव में भी होता है। इसमें जो सेंटर में होल होता है ना, वो होल में हम लोग फीड करते हैं ग्रेन। ठीक है, वो सेंटर में होल में फीड करते हैं ग्रेन। एक मिनट, लेट मी गेट अ गुड पिक्चर। एंड गेट इट हियर। या सो सेंटर में होता है एक छोटा होल, और वो होल के अंदर ये ग्रेन को हम डालते हैं और ये चक्की को घुमाते हैं। जब ये चक्की को घुमाते हैं तो ये दोनों व्हील्स के बीच में बहुत कम स्पेस होती है, वहाँ पे ये चला जाता है ग्रेन का छोटा दाना, और उसको जब हम घुमाते हैं फ्रिक्शन की वजह से ये पूरा क्रश हो जाता है, और क्रश होके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर में। और ये पाउडर को फ्लावर बोलते हैं हम लोग, बेसिकली उसको ही यूज़ करते हैं, उससे हम रोटी बनाते हैं, जो भी बनाना है। ठीक है, सो दिस इज चक्की, हैंड फ्लोर ग्राइंडर। लिखो, कोई बताएगा ये कहाँ पे पिवोटेड है? वेयर इज इट पिवोटेड? इट इज पिवोटेड हेयर एट द सेंटर। ये सेंटर पे पिवोटेड है, यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस है सेंटर में जिससे ये पास हो रही है, ये सेंटर पे पिवोटेड। सेंटर पे एक रॉड होता है जिसके ऊपर ये दोनों स्टोन पिवोटेड है। सो नीचे वाला स्टोन हैवी होता है, नीचे रहता है, ऊपर वाला स्टोन के ऊपर ये हैंडल होता है। हैंडल को अगर मैं पुश करता हूँ यहाँ से, तो ये टर्न करना शुरू करता है अबाउट दिस रॉड इन द सेंटर। सो द हैंड फ्लोर ग्राइंडर में द स्टोन्स आर पिवोटेड एट द सेंटर। ठीक है, ये हो गया पिवोटेड। फिर और एक पिवोटेड बॉडी जो मुझे ध्यान में आ रही है, दैट इज सिजर्स। सिजर्स पिवोटेड होती है, देखा है कभी सिजर को? दोनों ब्लेड होती है ना, उसके बीच में एक छोटा सा बोल्ट होता है। सो इफ यू पुश एंड पुल द हैंडल, ये जो दोनों ब्लेड है ये ऐसे पास में आती है और दूर जाती है। पिवोटेड है ना, इसकी वजह से दे टर्न about that small rod passing through the axis of rotation of scissors. Scissors are pivoted. Knife is not pivoted, of course. Yeah, so you will come across more such examples. There is one more example which is wrench, wrench or spanner. ये भी एक पिवोटेड बॉडी का एग्जाम्पल हो सकता है। सपोज एक नट है, ठीक है, ये नट को खोलने के लिए आई विल यूज अ स्पैनर और अ रेंच जिसका शेप कुछ ऐसा है। ठीक है, और ये ऐसा, और ये इसका हैंडल है। हैव यू सीन सम रेंच और अ स्पैनर लाइक दिस? तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं एंड देन वी पुश इट हियर। तो ये क्या होता है, टर्न होता है, एंड टर्न होने से जो नट है वो टाइट या लूज कर सकते हैं हम लोग। पिवोट करके ही टर्न करते हैं ना हम लोग, फोर्स अप्लाई करते हैं। सो अ रेंच और अ स्पैनर इज ऑल्सो an example of a pivoted bodies when it is used to open or tighten a nut or a screw, whatever. Yeah, so that is basically all the examples of turning effect or bodies which undergo turning effect on application of force. Now I'm going to give you the mathematical aspect of it. What does this turning effect depend on? ठीक है, टर्निंग इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बहुत सारे यहाँ भी एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएंगे। देखो स्पैनर वैनर का तो यहाँ पे दिया ही है एग्जाम्पल। लेट मी नाउ गिव यू अ मैथमेटिकल इफेक्ट ऑफ टर्निंग इफेक्ट एंड
give you a formula to find turning effect. ठीक है. So before we go to pressure, let's understand the mathematical aspect of turning effect, the math behind turning effect. So we all know now what is a pivoted body and what does a force do when it is applied on a pivoted body. Okay, let's start our statement with this. आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन. यही नोट्स तुम्हें जब मैं वीडियोस बोलता हूँ ना देखने के लिए, यही ऐसी ही नोट्स लेनी है तुम्हें, ऐसी ही नोट्स बनानी है. ये नोट्स तुम्हें इतना काम करेगी, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन आंसर्स लिखने से पहले वो क्लियर हो जाएगा. तो क्विज में और एक रिवीजन हो जाता है हमारा. ठीक है. अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ pivoted body turns it about the axis passing through the pivot. पिवोट के थ्रू जो एक्सेस पास हो रही है उसके अबाउट ये फोर्स उस बॉडी को टर्न करता है. दैट इज अ फोर्स प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट, या फिर ये टर्निंग इफेक्ट का जो दूसरा नाम है वो लिख रहा हूं यहां पे, या फिर टॉर्क, TORQUE. Torque is another scientific name for this turning effect. A force produces turning effect in a pivoted body. ठीक है. Force produces turning effect in a pivoted body. ये तो हमें पता ही चल गया अब तक. Now this turning effect or torque can be calculated mathematically. उसको कैलकुलेट कर सकते हैं using a formula. This turning effect or torque can be calculated using a formula. So what is that formula? So turning effect or torque और मोमेंट ऑफ फोर्स. तुम बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो नया नया, एक ही चीज़ है. ये जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना टर्निंग इफेक्ट, इसका दूसरा नाम है टॉर्क और इसका तीसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स. दीज आर ऑल सेम थिंग्स, रिमेंबर. क्योंकि तुम्हें एग्जाम में, अच्छा आई टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ICSE में क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर इज मोमेंट ऑफ फोर्स. फर्स्ट चैप्टर यही है, सेम चीज़ वापस पढ़ना पड़ेगा तुमको. और अगर अब पढ़ लिया तो 10th में जाके यू ऑलरेडी नो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, इसको याद रखना. सो टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय perpendicular distance of line of action of force. Don't worry, I'll explain you what is it. Perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. This is the formula for turning effect or torque or moment of force. मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाऊंगा ये कैसे ये एप्लीकेबल है. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये टर्निंग इफेक्ट ये फोर्स पे डिपेंड करती है, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड.
कि मैं दरवाजे को अगर जोर से पुश करता हूँ, फोर्स ज्यादा लगाता हूँ, तो टर्न फास्ट होके धड़ाम से बंद हो जाता है। फोर्स पे तो डिपेंड करेगा ही ना टर्निंग इफेक्ट, कितना बॉडी टर्न कर रहा है वो, मैं कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट इज दिस डिस्टेंस of line of action of force from the axis of rotation? We have to understand that ये distance क्या है, कौन से distance पे depend करता है ये turning effect? So let me show you with an help of an example. An example मेरा classic सबसे favorite example है door वाला, उसके आगे सारे example fail है, क्योंकि door हम दिन में 50 बार यूज़ करते हैं, इसलिए door से relate करना चीज़ों को easy है। ये तुम्हारा डोर है, ये है डोर का हैंडल सपोज। तुमने कभी सोचा है क्या, ये हैंडल हमेशा डोर के हिंज से सबसे दूर एक्सट्रीम एंड पे ही क्यों होता है? हैंडल कभी यहां पे क्यों नहीं होता, या हैंडल कभी यहां पे क्यों नहीं होता? क्यों होता है ऐसा? अच्छा, हैंडल नहीं भी होगा तो हम हमेशा यहीं पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यहाँ पे, ये साइड पे, ये साइड पे। वी नेवर एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन, दिस नेवर हैपन्स, वी नेवर एक्सर्ट फोर्स हियर। कभी तुम्हें ट्राई करना है तुम्हारे में कितनी ताकत है, तो जो डोर है ना उसके हिंजेस से उसको पुश करना करके या पुल करके ओपन करने का ट्राई करो। अगर तुम्हें अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करना है तो करो वो जाके, तुम्हें पता चलेगा कि क्यों हैंडल वो साइड पे दिया। अभी मैं तुम्हें इसके पीछे का मैथमेटिक्स बताता हूँ, एंड देन यू कैन ट्राई इट ऑन योर सिबलिंग्स, ऑन योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर मदर, मे बी योर फादर नोज, आई डोंट नो, बट यू कैन ट्राई। पूछ सकते हो तुम उनको, डोंट मेक देम एंग्री, बट थोड़ा उनको चिढ़ाओ, ये हैंडल यहाँ पे क्यों है? कल मुझे कारपेंटर को बुला के हैंडल अंदर की साइड लगाना है, हिंजेस के पास हैंडल लगा के दो मुझे, हैंडल यहाँ पे क्यों है, मुझे इसका रीज़न बताओ। यू कैन प्ले विथ योर फैमिली मेम्बर्स, इसका रीज़न ये मैं बताता हूँ तुमको। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल let me make it a little bigger. ये तुम्हारा डोर है, ठीक है, ये डोर की हिंजेस है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसके अबाउट ये डोर टर्न करता है, द डोर टर्न्स अबाउट दिस एक्सिस, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मुझे ये डोर को टर्न करना है, खोलना है या बंद करना है, तो खोलने या बंद करने के लिए मुझे उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, या टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कहां पे फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा? वेयर आई हैव टू एक्सर्ट फोर्स एट अ पॉइंट whose perpendicular distance from the line of action of force from the axis of rotation is maximum. मतलब I have to exert force at a maximum distance from this axis of rotation, and the maximum distance from the axis of rotation, maximum perpendicular distance, is this distance. This is, you can say, x, and this, अच्छा, इसके लिए अगर हैंडल यहाँ पे होता तो x की वैल्यू कम हो जाती, बिकॉज जस्ट इमेजिन डिस्टेंस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो जाता, हैंडल यहाँ पे होता तो वैल्यू और कम हो जाती x की। x क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ इफ आई अप्लाई फोर्स ओवर हियर at distance x from the perpendicular distance from the axis of rotation, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे मेरा फोर्स कितना है? फोर्स की वैल्यू है f, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम है, विच इज जितना होना चाहिए उतना ही है, उससे भी मतलब क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पे है। डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम, ठीक है।
फोर्स की वैल्यू भी मैंने अप्लाई की है, तो मैं कम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। इस कॉम्बिनेशन से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, टर्निंग इफेक्ट, उसकी वैल्यू होगी F मल्टीप्लाइड बाई एक्स। नाउ जस्ट सी, x इज ऑलरेडी मैक्सिमम, F इट इज इन माई हैंड, इट इज चेंजेबल। मैं थोड़ा ज्यादा भी फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। सो मैं अपने कन्वीनियंस से फोर्स को चेंज कर सकता हूं जब x की वैल्यू मैक्सिमम हो तब। मतलब जब हैंडल एक एज पे रहेगा डोर के, तो मैं कम या ज्यादा फोर्स अप्लाई करके भी डोर को बंद कर सकता हूं। अगर मुझे कम फोर्स अप्लाई करना है तभी भी डोर टर्न होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना है तो ज़्यादा जल्दी टर्न होगा, स्लैम हो जाएगा डोर, जो नहीं करना चाहिए। बट टर्निंग इफेक्ट दोनों केस में इनफ प्रोड्यूस होगी ताकि डोर बंद या खुल सके, बंद हो सके या खुल सके। दैट मीन्स it is always convenient to apply force at the maximum distance from the axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे ही फोर्स अप्लाई करने से टर्निंग इफेक्ट इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी बॉडी में तुम। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ लिखूंगा टू एम्फसाइज व्हाट आई जस्ट टॉट यू, टू प्रोड्यूस इनफ टर्निंग इफेक्ट by applying a minimum force to produce enough turning effect by applying a minimum force to turn a body we must apply force at a maximum distance. We must apply force at a maximum distance from the axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इनफ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी जो उस बॉडी को टर्न करेगी। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना है फोर्स कहाँ पे अप्लाई करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, सो आई जस्ट बिफोर दिस आई ड्रू फिगर ऑफ स्पैनर। ठीक है, ये वाली फिगर पे बात करते हैं ज़रा। अब इस स्पैनर पे मुझे इस नट को टाइट करना है या लूज करना है, जो भी है। आई एम गिविंग यू 3 पोजिशंस, 1 2 and 3, A, B and C. Can you tell me at which position should I apply force on this spanner so as to produce enough turning effect and by applying minimum force? A, B और C कहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ ताकि ये टर्न भी हो और मुझे ज़्यादा फोर्स भी ना अप्लाई करना पड़े? Tell me. Solve C. Okay, what about you, Kea? What do you think? Is C correct? Yes, sir. C is correct. It is correct. You have some doubt. I'll tell you, this is the axis of rotation. यहीं पे घूम रहा है ये। ठीक है, स्पैनर यहाँ से अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाला, मैक्सिमम डिस्टेंस ये। अगर यहाँ पे मैंने सी पे फोर्स अप्लाई किया तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस भी होगी और वो इनफ भी होगी इसको टर्न करने के लिए, और फोर्स भी मेरा मिनिमम हो। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल,
मेरे पास एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसको मैंने जेल में डाला है, और मुझे उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देनी है, और मैं जज हूँ ऑफ कोर्स। मेरी स्टोरी में तो कुछ भी हो सकता हूँ। मैं जज हूँ, मैं ही पुलिस हूँ, मैं ही हीरो हूँ, मैं विलन नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे उस क्रिमिनल को बहुत ही डिफ़िकल्ट सज़ा देनी है, डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट। तो मैं उसको ये चक्की देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि तुम्हें अगर खाना खाना है तो तुम्हें अपना आटा खुद बनाना पड़ेगा, ये लो ग्रेन और ये लो चक्की। अब अगर उसको 2 रोटी भी खानी है तो 2 रोटी के लिए जितना आटा चाहिए वो पीसने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हाउ कैन आई मेक हिज punishment more severe, more difficult? How can I make his life more difficult? बहुत अजीब क्वेश्चन है, आई नो, बट थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। हो सकता है आज से 5-6 साल बाद आईआईटी में ये क्वेश्चन आ जाए, आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए, हो सकता है, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ हैंडल। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, हैंडल की पोजिशन चेंज कर सकते हो। क्या करोगे? Sir, you can keep that handle in the central. Yeah, exactly. I would do the same. I will keep the handle over here near the center. सेंटर पे रखूंगा तो घूमेगा ही नहीं, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा जो घूमेगा नहीं ये पत्थर। ठीक है, बट इफ आई शिफ्ट द हैंडल टूवर्ड्स द सेंटर, इफ आई डिक्रीज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर मैंने कम कर दिया, ठीक है, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। ठीक है, अगर जितना डिस्टेंस दूर रहा तो फोर्स कम लगेगा, जितना डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको घुमाने के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कम हो गया तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस इनफ टर्निंग इफेक्ट। इसीलिए ये जो हैंडल है ना, इसको एज में रखा गया है ताकि मिनिमम फोर्स से इस दोनों पत्थर को तुम घुमा सको और उसके बीच में जो भी ग्रेन है उसको तुम फ्लोर बना सको। ठीक है, so that's a good one. Yeah, so that was some practical applications. So yes, moment of force का फॉर्मूला देख लिया तुमने, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट, फोर्स पे भी और डिस्टेंस पे भी, ये भी तुमने देखा। और उसके एग्जाम्पल्स ये लोग ने दिए हैं जो तुम तुम्हारी बुक में, रिस्पेक्टिव बुक्स में देख सकते हो। और एक एग्जाम्पल जो हमने लिखा नहीं है वो है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार, वो भी पिवोटेड होता है सेंटर में, जैसे तुम्हारा कार का व्हील होता है वैसे स्टीयरिंग व्हील, वैसे ही तुम्हारा बाइसिकल का जो पेडल होता है वो जिस गियर के ऊपर माउंटेड होता है वो भी इसी टर्निंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, so moment of force is equal to the product of force and the perpendicular distance of force from the pivoted point, ये हमने पढ़ा। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, ये यूनिट भी बता देता हूं मैं ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैंने फॉर्मूला तो बता दिया। फोर्स का जो यूनिट है ना, याद रखना, मैंने तुम्हें अभी बताया था, फिर से बताता हूं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, इसका सिंबल है कैपिटल एन। एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वॉट एवर द डिस्टेंस मे बी, इट इज मीटर, और इसका सिंबल है एम। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टर्निंग इफेक्ट? टर्निंग इफेक्ट का यूनिट है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर फ्रेश, SI यूनिट ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और NM,
NM भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका और एक यूनिट है CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। CGS यूनिट जो हमने डेंसिटी में भी देखा था लास्ट चैप्टर में, CGS यूनिट ऑफ टर्निंग इफेक्ट is dyne centimeter. Dyne, D-Y-N-E, dyne. This dyne is the CGS unit of force and centimeter is the CGS unit of distance. Dyne centimeter. So CGS unit of turning effect is dyne centimeter. SI unit is Newton meter. और एक रिलेशन भी याद रख लेना, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर. प्लीज रिमेंबर दिस, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं ये रिलेशनशिप. बाकी न्यूमेरिकल्स अगर तुम देखोगे बहुत इजी आने वाला है. Okay, so yeah, I think we have learned enough today. enough मतलब हमने जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज, those are a very good starter for a beginning of this topic. And now let me see how much we have covered in this book. Okay, कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, प्रेशर भी है, ठीक है. ओके, तो आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ. नो होमवर्क. वाई? बिकॉज प्रेशर अभी भी बाकी है, ठीक है. प्रेशर मैंने पढ़ाया नहीं है, प्रेशर मैं कल पढ़ाऊँगा. बिकॉज ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे से बहुत अलग है. मोमेंट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दे आर पुट इन द सेम चैप्टर फॉर बोथ ऑफ यू. I don't know why, but they are put in the same chapter, but we should treat them separately. तो मैंने आज जो भी चीज़ें पढ़ाई एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना और उसको याद रखना, ठीक है. दूसरा, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग.